हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है चैप्टर नंबर 8 डेसिमल। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका कंटेंट हम एक बार देख लेते हैं। यस, ओके। अंडरस्टैंड डेसिमल, रिलेट फ्रैक्शन एंड डेसिमल, रिप्रेजेंट डेसिमल ऑन नंबर लाइन एंड कंपेयर टू डेसिमल। तो इस चैप्टर में ये हमारा कंटेंट है। ओके, नाउ रिपीट once again. Understand decimal, related fraction and decimal, represent decimal on number line and compare to decimal. Okay, so let's start students. तो सबसे पहले डेसिमल जो नंबर है उसका एक प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ दिया है। यस, अब यहाँ वंस है, उसकी लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो देखो वंस तो यहाँ 1 है, टेंस मीन्स 10, हंड्रेड्स 1000, 10,000, लाख 10 लाख, है ना। अब राइट साइड की हम बात करें तो टेंस, देखो यहाँ टेंस है और यहाँ टेंस है, TENTHS, टेंस। So here we write 1 upon 10th. Okay, then after hundreds, 1 upon hundreds, thousands, 1 upon thousand, है ना। पीछे सबके THS, यस, 10,000 है ना, THS। सो यहाँ उसकी प्लेस वैल्यू 1 upon 10, 1 upon 100, 1 upon 1000 एंड 1 upon 10,000। देखो यहाँ मैंने रेड किया हुआ है, हाँ, है ना, टेंथ्स और यहाँ टेंथ्स। अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ चैप्टर में आपको बता दूँ मैं, फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 etc. are called decimal fraction, decimal fraction, and can be written in decimal form. Example, 4 upon 10. So how to write? 0.4, it's a decimal form. 12 upon 10, so we write 1 upon 2. Next one, 3 upon 15 upon 10, so how to write? 31.5. 2438 upon 10 is equal 243.8. Do you understand students? 7 upon 100, so how to write? 0.07. 27 upon 1000, 0.027, बिकॉज पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, सो अपॉन 1000 है यहाँ। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि 9 अपॉन 1000, सो हाउ टू राइट? 0.009. 27 upon 100 is equal 0.27. Do you understand?
Okay, we will start decimal. Savita and Shama were going to market to buy some stationery item. सविता और शमा स्टेशनरी आइटम परचेज करने के लिए मार्केट गए. सविता सेड आई हैव 5 rupees and 75 paise. शमा सेड आई हैव 7 rupees and 50 paise. They knew how to write rupees and paise using decimal. So Savita said I have 5.75 and Shama said I have 7.50 because it's a decimal point. Okay, have they written correctly? Yes, obviously. We know that the dot represent a decimal point. Dot represent in a decimal point. In this chapter we will learn more about working decimal. So our first topic is tenths. Ravi and Raju measured the length of their pencil. Ravi's pencil was 7 cm 5 mm long and Raju's pencil was 8 cm and 3 mm long. Can you express these length is centimeter using decimal? We know that 10 mm is equal 1 cm. 10 millimeter is equal 1 centimeter. Therefore, 1 mm is equal 1 upon 10 cm. Remember students, 1 mm is equal 1 upon 10 centimeter, जिसको हम 1/10 सेंटीमीटर कहते हैं. And 1/10 cm is equal 0.1 cm. Now length of Ravi pencil 7 mm and 7 cm and 5 mm. So 7 integers 5 upon 10th, because 1 mm is equal 1 upon 10 mm. Okay, so 5 mm is equal 5 upon 10, means 7 centimeter and 5 tenths of a cm. So 7.5 cm, जो आपको पेज नंबर 164 पर दिया हुआ है. Length of Raju's pencil 8 cm and 3 mm. So 8 integers 3 upon 10 is equal 8.3 centimeter. It's a very important students. 1 mm is equal 1 upon 10 centimeter. Okay, let's recall what we have learned earlier. If we show unit by block, then 1 unit is 1 block, 2 units 2 block, and so on. 3 unit 3 block, 4 unit 4 block. So 1 block divided into 10 equal parts. Okay, now underline students, means each part is 1/10 of a unit. 2 part show 2/10, 5 parts 5/10, and so on. A combination of 2 block and 3 parts तो आपको यहाँ बताया हुआ है. ओके, वंस एंड टेंथ. 1 1/10, 2, तो यहाँ 10th में 3 ब्लॉक अलग से दिए हुए हैं, देखो, है ना. हाँ, 2 ये जो है ना 1 और 2 ये दिए हुए हैं और 3 ब्लॉक अलग से है, इसलिए यहाँ 3 लिखा है. हाँ,
Let's look at another example where we have more than ones. Each tower represent 10 unit. So number shown. अब यहाँ देखो 1 और 2 टावर है, इसलिए यहाँ टेंस में होगा 2. अब वंस की अगर हम बात करें तो यहाँ देखो 1, 2 और 3, इसलिए यहाँ वंस में लिखा है 3. और टेंथ में देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसलिए यहाँ लिखा है 5. अब टेंस 2 इंटू 10 इज इक्वल 20, राइट. अब 3 वंस है, 3 इंटू 1 इज इक्वल 3. अब 5 टेंस है, अब 5 टेंस यानी कि 0.5. अब हम इसको एडिशन करते हैं, 23 प्लस 0.5 इज इक्वल 23.5, जो आपको यहाँ मिलता है आंसर. डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ ट्राई दिस. हंड्रेड्स. अब यहाँ 5, टेंस में 3, वंस में 8 और टेंथ में दिया है 1. हाँ, अब 5 इंटू 100 तो आपको मिलेगा 500, राइट. 3 इंटू 10 तो आपको मिलेगा 30. 8 इंटू 1 तो आपको मिलेगा 8, यानी कि 538. अब यहाँ 1/10 यानी कि 1/10 है, और 1/10 यानी कि 0.1 प्लस 0.1. तो हम यहाँ एडिशन करें, 538 प्लस 0.1 इज इक्वल 538.1 मिलता है. ओके. सेम थिंग्स यहाँ सेकंड. 2 इंटू 100 यानी कि 200. 200. 7 इंटू 10 यानी कि 70. और 3 इंटू 1 यानी कि 3, यानी कि 273. एंड 1 दिया है यानी कि प्लस 0. यहाँ 4 दिया है, 0.4, तो आपका आंसर हो जाएगा 273.4. देन आफ्टर लास्ट 3 इंटू 100 यानी कि 300. 5 इंटू 10 यानी कि 50. एंड 4 इंटू 1 यानी कि 4, यानी कि 354. एंड 6 10 दिया है यानी कि 0.6, तो आपका आंसर हो जाएगा 354.6. डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो ये जो ट्राई दीज है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. हाँ, तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है. थोड़े और आपको एग्जांपल बता दूँ, जैसे कि 9/100, सो 0.09. 12/10 इज इक्वल 1.2. ओके. 23/1000 is equal 0.023. 45/10 is equal 4.5. तो आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.